And the moment that everyone's been waiting for, we have Chetan sir with us. Hi guys. Hi. Sorry, I think I had some other Zoom link. I went to some other conference. I don't know. Problem, sir. Everyone's been waiting for you, so I'll just not spend too much time with the introduction because you need none. Everyone knows you as an extremely famous novelist across, for our country. But what people often don't also remember is that before you became an extremely successful novelist, you are also an extremely successful student who went to IIT and IIM as well. So, myself included, being people who have first, read their first novel written by you, I would just let the stage go on to you, and we'd start off with the session for preparing for the first 90 days before the exams for all of our students who've joined us across different coaching institutes. Thank you so much for that nice introduction. Thank you for having me. And thank you to all the teachers and all the institutes that enabled this to happen today for the benefit of students. I'm normally, you're right, I'm normally known as a writer, and people want to know about the movies, and people want to know what the actors are like, and how is Shraddha Kapoor like, and what is Alia Bhatt like, and which is very fun. But it feels really nice and fulfilling and satisfying when people want to know something about my own education, about something which you called me for something that will directly help the students. And I think, of course, it's Bollywood talk is fun, but there is a lot of Bollywood everywhere on social media. But I think it's rare to have people whom you've heard of come and talk about their own journey. And I love talking about it. It's just that people are more interested in Bollywood. So I'm glad that this platform has been arranged so that I can come and share my experiences, uh, mainly with students, but also with teachers and all the people who coach all these students into performing at their best. Of course, I would say 95, 99% of the credit goes to the student when some achievement happens. But it's never just the student, the teacher, the coach helps. Even a cricket team of India has a coach. You never have a team without a coach. You never have a team without, they even have psychologists and mentors and all kind of things. So, so it's all teamwork in doing this. So I think you've called me. I'm going to talk about my journey. But even in my journey, um, there were teachers, there were coaches who helped me do this. So I will remember them today also a little bit. And I will talk a little bit about my being a student. And it's not like I was born genius, you know. It's not like I was born to be famous. It was not like I was born to be so confident that I can just go out there and talk in public. This could have been an auditorium. Of course, this is today not possible, so we are doing it on Zoom. But I was like any of the students attending this today, honestly. It's just that we didn't have this. Neither did we have this technology, nor did we have these kind of platforms at that time that someone came and told me what it was all about. I was so therefore I was I was uh, Sorry, yeah, someone needs to mute, I think. So I was pretty when I remember I was born in Delhi. I My father was in the army. I went to the army public school in yeah. Dholak. I don't know. It's quite a big school. It's called TAP, the Army Public School. Uh, and I think a couple of things happened there. I was firstly never a I was a good, curious kind of student. I was a curious student who actually liked to learn things, but somehow I was not a topper. It's not like I was coming first in class, and even in Army Public School, it's not like Army Public School is like a, which like in our times there was this DPS Archive Puram which had only the toppers from all over. So that's the thing. But in Army Public School, it was a pretty average set of students, and even there, I was not in the top 10 also sometimes. I would try, my aim was to be in the top 10 of a Yeah. class of 40, not the whole grade of 300. We had a huge, it is a huge school because if an army officer gets posted in Delhi, you have to take their children in it. Believe it or not, we had section till X.
Yeah. I can bet you nobody has a school which has like A, B, C, D. So you have fifth A, B, C, D. It went sometimes till X. So you could have a technically a XX, which is like 10th X. So so it was a huge school. It's not a school which is like a huge academic focus. And even there, I was hoping that I'll get in the top 10. PTA meetings were scary for me. They were so scary that they will come and say, Mrs. Bhagat, Chetan is so naughty. He talks so much. He doesn't know when to stop. Chatter patter he does. PT meetings are so scary that till today PT meetings are scary for me. So you're Even though I am the parent. coming for the session? Huh? Your parents also scared of coming to the... No, I have my boys now, and that's the other connection I have with the event today. That I have two boys who are a similar boat as many of the students here. They are 16, they're in grade 11. But now when they have their PTA meeting, I get scared still. They say, Dad, we have a PTA meeting, and I'm scared because I have scary memories of my PTA meeting. And they're like, no, Dad, you are the parent now. We should be scared. So all in all, why I'm telling you this is, it's not like there was anything exceptional about me. Nobody said there is an exceptional child. Yeah. I had a 10th class result. I'm going to share with you. My board exams, my aggregate score was 76%. Hmm. Now, I know that was a while back, but even at that time, it was not that great a score. Okay. Yeah. So it wasn't. And I realized it's not a good score. And I realized that, and I'm having too much musty. I had too many friends, gang, and doing all kinds of crazy things. I thought I'm good, I understand things, but somehow the marks weren't coming. And then I thought, okay, I'll become a little more serious after 10th because people were judging me as an average student. And I thought, okay, if I don't shape up, it's not going to work out for me. Nobody will. People, initially people say, parents tell you, uncles tell you, relatives tell you, but after a while, people just give up. They're like, okay, this is an average student. Iska kuch nahi hone wala. So then I became a little more serious. So the point is, lesson number one is, guys, firstly, you don't have to be a genius to do this. Secondly, you have to decide to change. Your mom can't do it, your dad can't do it, your uncle can't do it, your teacher can't do it, your coach can't do it. They can enable you, they can help you. Agreed. Right? You decide to climb up the stairs, they can say, well done. They can tap your back, they can give you a glass of water to climb up the stairs. But you have to choose to do it. And I said, I'll do it because I want to become something in my life. I had no idea I'm going to get famous. I had no idea I'm going to write books. By the way, I'll just quickly tell you the journey of books also started in school. In grade 5, a school launched a magazine, school magazine, and nobody was giving articles. And the teacher... Sorry to cut you, but let's also do a little bit of Hindi because a lot of our viewers are requesting. I love Hindi. So thoda... Assuming if someone will make. तो जब मैंने 5वीं कक्षा में था, when I was in grade 5, तो हमारे स्कूल ने मैगजीन लॉन्च की और कोई उस पर आर्टिकल नहीं दे रहा था. तो लिटरली क्लास में आके टीचर ने सब बच्चों को डांट लगाई क्लास 5A के, तुम बेवकूफ बच्चों, वी आर लॉन्चिंग दिस मैगजीन, तुम इसमें आर्टिकल लिख के तो कुछ करो, सबको देना पड़ेगा. तो मैंने बैठ के एक जोक लिखा. मेरे को जोक नहीं याद है, सीरियसली आई डोंट रिमेंबर, बट इतना सा 2-4 लाइन का जोक मैंने लिख के, मैंने कहा जोक सबसे सिंपल लिख के दे देता हूँ, मेरा हो जाएगा, लंबे लंबे आर्टिकल कौन लिखेगा. और मैंने वो जोक दिया एंड वो जोक छपा. 2 महीने बाद मैगजीन छपी और एक कोई बड़े आर्टिकल के एंड में एक छोटा सा जोक था और उसके लिखा होता चेतन भगत 5th. एंड आई वेंट मैड. मतलब मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हुई अपना नाम प्रिंट में देख के. उस टाइम पे नाम आप प्रिंट में नहीं देख सकते थे. अभी तो आप मतलब स्क्रीन पे अपना नाम टाइप कर दो, टिकट पे आपका नाम लिखा है, आपके आईडी कार्ड पे नाम आपका प्रिंटेड है, बहुत कॉमन हो गया. इट्स नथिंग. इवन नो प्रिंटर्स देयर, दे वर नॉट इवन प्रॉपर कंप्यूटर्स देन. सो अपना नाम प्रिंटेड देखना, इट वाज ह्यूज. एंड आई थिंक समवेयर देयर द चिंगारी ऑफ बीइंग अ राइटर. सो दैट्स अनदर लेसन. इन यू स्कूल इज अ ग्रेट प्लेस टू ट्राई अदर थिंग्स. आप अलग अलग चीजें ट्राई करो, क्या पता वो लाइफ में काम आएगा. ऑफकोर्स आज का हमारा सेशन उस पर नहीं है, पर अगर मैंने वो ना लिखा होता जो जबरदस्ती मेरी टीचर ने लिखवाया, तो शायद मैं राइटर ना बना होता. एनीवे, बात होती वापस 11th में आके मैंने कहा चलो अभी पढ़ना पड़ेगा बेटे, नहीं तो कोई पूछेगा नहीं तुम्हें लाइफ में. और उस टाइम पे तो इतने इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं अवेलेबल थे, ये थोड़े बहुत थे, कॉरेस्पॉन्डेंट से बहुत लोग पढ़ते थे. तो मैंने कहा कि ठीक है, आई डू दैट, आई विल
वो मैं जितना हो सके पढ़ता हूँ, पर गिरते पढ़ते ही मैंने आईआईटी की पढ़ाई की। लेकिन एक जो चीज़ करी कि एक जो मैंने चीज़ करी, वो ये कि मैं रोज़ ज़रूर कुछ करता था अपनी आईआईटी की तैयारी के लिए, हम्म, रोज़। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं दिन-रात पढ़ता था। हम्म, कभी-कभी कई बार हुआ भी होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन यूजुअली होता था रोज़ कुछ तैयारी, रोज़ कुछ करना है कुछ घंटे। और हम्म, ये सबसे बड़ा असेट है, ये सबसे बड़ी आपकी ताकत है कि आपके पास 1 साल पड़ा है, आपके पास 2 साल पड़े हैं और आप थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा करके बहुत कुछ कर सकते हो। तो चेतन इसके लिए आप अगर जी हाँ जी। आता था, क्योंकि आपने जो बात की ये तो बहुत दिलचस्प है, मगर मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और जो मैंने खुद देखा है आज तक, जैसे पता हमें भी होता था कि 90 दिन हैं, बट वो जैसे मैं पहले भी बोल रहा था 90 दिन 9 दिन बन जाते हैं और फिर कभी-कभी 9 दिन 9 घंटे भी बन जाते हैं। तो 9 आप मिनट भी बन जाते हैं। कैसे मोटिवेट करके रखते थे जिससे आप हर रोज कुछ जो आपकी ज़रूरी पढ़ाई होती थी वो करते रहते थे? जी हाँ। देखिए, मुझे कहा गया बताओ 90 डेज़ पहले क्या करना है? अब बताओ 90 डेज़ में ऐसे क्या करना है? हुँ, 95 डेज़ पहले क्या करना है? हुँ, 85 डेज़ पहले क्या करना है? हुँ, 75 डेज़ पहले क्या करना हुँ, है? ऐसे दिन रखने ही क्यों? पहली बात तो हुँ, कि भाई 90 दिन पे हम गियर बदलेंगे गाड़ी की। हुँ, अगर आपके पास जितना ज़्यादा वक़्त है, वक़्त ही आपकी ताकत है। आप एक मोस्टली यहाँ पे बच्चे मिडल क्लास बच्चे हैं, क्या ताकत है आपकी? आपकी आपकी मेहनत करने की ताकत है, आपकी थोड़ी इंटेलिजेंस है और आपके पास टाइम है। जी, उस टाइम को आप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? आप टाइम बर्बाद कर सकते हैं हुँ, और आप टाइम को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं शुरू से ही 2 साल रोज़ 6-6 घंटे आईआईटी के लिए पढ़ता रहा। रोज़ 2 घंटे ज़रूर पढ़ता था, हुँ, 2 साल पहले भी। हुँ, फिर 1 साल जब बचा था तो शायद 3 करने लग गया और जब 6 महीने बचे थे तो 4 करने लग गया एंड हुँ, शायद जब 3 महीने बचे थे जो आप 90 डेज़ कह रहे हो, तो 5 घंटे करने लग गया। नहीं, मैं मानता हूँ एक लेकिन वो एक ग्रेजुअल राइज़ है। ये जी, नहीं कि मतलब सारा दिन यूट्यूब वीडियो चल रहे हैं, इंस्टाग्राम चल रहा है, ये चल रहा है, 91 डेज़ है अभी तो यार 91 डेज़ है और 90 डेज़ से तो भैया हम बिल्कुल बदल जाएँगे, वो आप बदलोगे ही नहीं। हुँ, देखो, आपको क्षमता डेवलप करनी है, आपको कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, ये आसान नहीं है गोल। इट इज़ जी, लाइक अ वेट लिफ्टर हाँ, जिसको ओलंपिक्स की तैयारी करनी है 4 साल बाद। तो बोले हुँ, ओलंपिक्स है अभी क्या कर रहे हो यार अभी 4 साल बाद है ओलंपिक्स, आ जा यार गाजर का हलवा खाते हैं। वो ऐसे नहीं करता, वो करता रहता है तैयारी। ऑफ कोर्स जब ओलंपिक्स में 90 डेज़ रह जाते हैं, तो वो थोड़ा 50% डबल भी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 0 से डबल पे जा सकता है। वो 100 से 150 जा सकता है। लेकिन आप अगर 100 तक नहीं पहुँचे हो, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए मैं मोस्ट बच्चों को यहाँ यही बोलूँगा कि यार वक़्त मत ज़ाया करो, वक़्त मत वेस्ट करो, ठीक है? और जो वो मैं लकी था कि मैं नहीं करता था, इतना टाइम वेस्ट, फिर भी करता जी, था, ठीक है? जी, एक चीज़ में मैं लकी आपको बताऊँ क्यों था? हमारे टाइम में ये नहीं था। ये एक बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बीमारी भी है, राइट? इस फ़ोन से मेरी बहुत दुनिया चलती है। यू हुँ, नो इस फ़ोन से मैं राह भटका लिटरली गूगल मैप्स आप भटके हुए को घर पहुँचा सकता है। तो हुँ, ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। ये मोस्टली लोग शायद फ़ोन पे देख रहे हैं इस वक़्त, हुँ, तो अच्छी चीज़ है। जी, लेकिन खराब भी है। जिस तरीके से खाना है, खाना अच्छी चीज़ है, अगर आप खाना नहीं खाओगे आप मर जाओगे। लेकिन अगर ठूस-ठूस के ओवर ईटिंग करोगे तो भी मर जाओगे। तो वो कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ भी एक्सेस क्वांटिटी में खराब हो जाती है और फ़ोन बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। फ़ोन मेरे टाइम पे नहीं था। मेरी जेब में फ़ोन होता शायद मैं ना पढ़ता फिज़िक्स के लिए या मैथ्स के लिए या उसके लिए। मेरी जेब में फ़ोन ना होता तो शायद मैं इतनी कहानियाँ भी ना सोच पाता। खैर, आप लोगों के पास फ़ोन है, तो बात और मेरे बच्चों के पास भी फ़ोन है। सो इट्स नॉट लाइक कि आई कांट रिलेट टू दैट। मुझे पता है कि कितनी बड़ी टेम्पटेशन है। एट दिस एज ऑल्सो मैं अगर अपना फ़ोन सुबह उठ के चेक ना करूँ मुझे लगता है कि मतलब सुबह हुई भी है कि नहीं? तो सो फ़ोन फ़ोन से एक एक छोटी बात ये थी कि थोड़ी वॉल्यूम मेरे ख़्याल से हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कह रहे हैं कम आ रही है, तो आप एक ज़रा I'll just वॉल्यूम पे switch off थोड़ा the fan. I think maybe that is creating something. Wait 1 second, guys. Okay, is this better? यस। Better? I think the fan. I think. Okay. Let me know अगर इसमें कोई इशू है तो फिर we'll try some other way. Okay. तो
आपको पहली बात खुद फैसला करना है कि मेरे को कुछ लाइफ में बनना है, और दूसरा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। क्योंकि टाइम एक आप टाइम मैनेजमेंट तब कर सकते हो जब आपके पास टाइम है। अब आप टाइम ही खा गए, टाइम ही आपने फ़ोन पे 5-6 घंटे बर्बाद कर दिए, तो जो इतना सा टाइम बचता है उसको मैनेज करोगे कैसे? बेस्ट है कि आप करो मत, ठीक है? अगर लाइफ में कुछ बनना है, तो इस फ़ोन को आप ज़ीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज़ कर सकते हो। हम्म, एक तरह से ये एक बीमारी भी है, बट एक तरह से ये आपकी ताकत बन सकती है। बताऊँ, लोग कहते हैं कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ते जा रहा है, पर एक्चुअली कॉम्पिटिशन कम भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ़ोन में गुम गए हैं। हम्म, हम्म, आपको सिर्फ फ़ोन से बाहर निकलना है। आप हम्म, फ़ोन से बाहर निकल जाओगे, आप 50% बच्चों से ऑलरेडी आगे हो गए। 50 हम्म, क्या 70%, मे बी 80%, आई डोंट नो। सो यू प्लीज़, प्लीज़, एंड आई टोल्ड दिस टू माय ओन बॉयज़ आल्सो, देखो, जी, आज मज़े कर लो, फिर हम्म, बाद में मुसीबत आएगी। हम्म, ठीक है, आज इंस्टाग्राम पे लाइक कमा लो या फोटो देख लो, या कोई क्यूट लड़की जो भी होता है 11th में, मुझे नहीं पता है हम क्या कहते हैं, उसकी फोटो लाइक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सो आई थिंक दैट, अनलेस यू आर अ जीनियस, यू नो, कई बच्चे जीनियस होते हैं पर वो बहुत 0.0001% होते हैं, आईआईटी में आते हैं ऐसे बच्चे, लेकिन हम्म, मोस्टली ऐसे नहीं होते, मोस्टली मेरी तरह ही होते हैं, तो मतलब ठीक है, थोड़ी अबव एवरेज इंटेलिजेंस है, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो कुछ भी पा लेंगे, ऐसी वाली वो बहुत लोग होते हैं, और मोस्ट लोग जो आज आपका ये अटेंड कर रहे हैं, उन सब में ये एबिलिटी है जो मेरे में थी। जो एक 76% का बच्चा, फिर मैंने मेहनत की तो मेरे 12th में 85% आए, मेरा आईआईटी में हुआ भी, और एक बार मेरा आईआईटी में हो गया, उससे तो मुझे ऐसा वैक्सीन लगा कॉन्फिडेंस का, जो हम्म, आजकल वैक्सीन की बातें चलती हैं, हम्म, कि मुझे लगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम्म, तो फिर मैंने आईआईएम के लिए भी करूँगा, आईआईएम भी हो जाएगा, राइटर भी बन सकता हूँ, मैं फिल्म भी बना सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम्म, एंड वो ये वही बच्चा है जो कुछ साल पहले श्योर हम्म, नहीं था लाइफ में, जो 40 लोगों की क्लास में, आर्मी स्कूल के 40 की क्लास में टॉप 10 आने का सपना था उसका, हम्म, जिसका कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे। हाँ, सो गाइस, कंसिस्टेंसी, हम्म, ओके, कैन ब्रेक एनी जीनियस। वो जो खरगोश और कछुए वाली कहानी है ना, जी, मोस्टली आप सब यहाँ पे कछुए हैं, एंड इट्स ओके, ईगो क्यों रख लो, कि मैं तो कर लूंगा, मैं तो लास्ट 90 डेज में संभाल लूंगा, मैं तो इसमें संभाल लूंगा, और मेहनत करने से नहीं घबराना, यू नो। चलो, आपने फोन भी उधर रख दिया, अब ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन उधर रख दिया तो ऑटोमैटिकली आपका एडमिशन हो जाएगा। हम्म, आपको उसके बाद मेहनत चालू करनी है, राइट? ना सिर्फ आपको फ़ोन हटाना है, आपको काम की तरफ अपना ध्यान रखना है, अपना फ़ोकस रखना है। हम्म, सो फॉर दैट यू हैव टू रियलाइज़ इन लाइफ कि लाइफ में 2 रास्ते हैं। एक ये प्लान ए आपको बताता हूँ, खूब मज़े करो, खूब मज़े करो, ऐश करो यार, बोलो यार ये तो सर बकवास कर रहे हैं, ये तो जवानी के दिन है सर, अभी तो हमें ऐश करनी है, पार्टी करनी है, टीवी देखना है, यूट्यूब देखना है, सर को पता ही नहीं है नेटफ्लिक्स है, कितनी सारी चीज़ें हैं देखने को, राइट? सो यू नो, तो हम क्या करें, राइट? सो दैट इज समथिंग, वो कर सकते हो, और आप करोगे, और अगर आप वो कर रहे हो तो आपका अच्छे कॉलेज में नहीं होगा, फिर आपकी अच्छी जॉब नहीं लगेगी, फिर आप लोगों के आगे हाथ जोड़ोगे, आपके पापा मम्मी लोगों के आगे हाथ जोड़ेंगे कि भाई हमारे बच्चे का करा दो सर, यू नो, हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो, हमारे हम्म, बच्चे का लगा दो, फिर वो जॉब लगाएंगे, वो जॉब कोई खास नहीं होगी, इसका मतलब आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, हम्म, वो पैसे नहीं मिलेंगे, फिर आप कभी घर नहीं खरीद पाओगे, घर हम्म, लोगे तो लोन लेके लोगे, फिर लोन चुकाते रहोगे, फिर आप हम्म, जब तक 30-40 साल के होगे आपके पास लोन ही लोन होंगे, आपकी जॉब भी कोई जॉब होगी, करियर तो होगा नहीं, क्योंकि आपको बेस्ट जॉब तो मिली नहीं। हम्म, हम्म, तो ये जो आपने अभी ऐश की, इसका बिल आपको 40 साल में आएगा। हम्म, ये है प्लान ए। अच्छा, प्लान बी है, अभी घिस लो, अभी हम्म, मेहनत कर लो, 4-5 साल चलो, थोड़े इंस्टा के पोस्ट कम देख लो, थोड़े यूट्यूब वीडियोस कम देख लो, थोड़ी ऐश कम कर लो, थोड़ा पार्टी कम कर लो, थोड़ा क्रशेस व्रशेस कम कर लो, हम्म, फिर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे, फिर आपकी टॉप जॉब लगेगी, फिर आपके पास पैसे भी होंगे, आप पे लोन भी नहीं चढ़ेंगे, आपकी सेविंग्स होंगी, आपकी सेविंग्स और इन्वेस्ट करके और पैसे आपको कमा के देंगी। हम्म, So that is another way. And then by the time you're 40, you have so much money, आप फॉरेन घूम रहे हो, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ियां हैं, ये है वो है, क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम ऐश छोड़ी थी। वो है हम्म, प्लान।
अब यहाँ पे जो भी ये सुन रहा है, आपको ये डिसाइड करना है मुझे लाइफ में प्लान ए चाहिए या प्लान बी चाहिए। हम्म, जो आज ऐश कर लो उसका बिल आएगा, जी, आज मेहनत कर लो उसका रिवॉर्ड आएगा। ये लाइफ का रूल है। मैं जी, हमेशा लोगों को कहता हूँ, थोड़ा ये बाबा टाइप साउंड करता है, सुख में दुख है, दुख में सुख है। जी, Which means today you think it's giving you happiness. I'm not studying, I'm having fun with my friends, I'm watching TV. It's giving me, I'm feeling it happy. Opening a book of maths and physics makes me very unhappy. Fine, I give you. हम्म, But it will lead to misery later. अच्छा, आज आप गुलाब जामुन खाए जाओ, खाए जाओ, हाँ, आप मोटे हो जाओगे, आपको बीमारी हो जाएंगी, डायबिटीज हो जाएगा, हार्ट पेशेंट बन जाओगे। हाँ, गुलाब जामुन खाते हुए बड़ा सुख था, बाद में दुख बन गया। आप जिम जा रहे हो, आपको मुश्किल हो रही है, क्या बकवास चीज़ है यार, वेट्स उठाना, रोज उठ के सुबह भागना, ये बकवास है, जी, दुख है। लेकिन जी, आपकी अच्छी बॉडी हो जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप देखने में अच्छे लगोगे, जी, दुख बन गया सुख, सुख बन गया दुख। सेम पढ़ाई का है, सेम मेहनत का है। सो डोंट लिव अ लाइफ थिंकिंग कि बस दुख नहीं आएगा। आपको अपना दुख चुनना है, और वो सुनना, दुख आज चुन लोगे तो पूरी जिंदगी सफल होगे। ये जो 15 to 30, और आई वुड से 15 to 25 हम्म, हम्म, में जो आप करते हो, उसका रिजल्ट 25 to 85 तक आएगा। अच्छा, आप 15 to 25 अय्याशी करो, आप 25 to 85 तक उसका बिल भरते रहोगे। आप 15 to 25 मेहनत कर लो, आप 25 to 85 उसकी ऐश करते रहोगे। मैंने कर ली तब मेहनत, आज मैं बैठा हूँ घर पे, ज्ञान बांट रहा हूँ लोगों को, हाँ जैसे मुझे सब पता है, ठीक है। और अगर उस टाइम मैंने मेहनत ना की होती, मैं ऐसे कहीं पे नौकरी कर रहा होता, अपना हिसाब कर रहा होता घर पे, यार अच्छा अगले महीने की फीस कैसे देनी है बच्चों की, ये कैसे करना है, ये फैक्ट है लाइफ का। दीज आर चॉइसेस। सारी सबसे बड़ी बात यहाँ से शुरू होती है, आप चाहते क्या हो, आपका मेंटल एटीट्यूड क्या है। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले सब हैं, बुक्स हैं, टीचर्स हैं, आपको पता है क्या करना है, हम्म, राइट। ये थोड़ी मैं बता सकता आपको क्या नहीं करना, आप बैठ के पढ़ना है, सबको पता है। लेकिन मेंटली आपकी क्या स्टेट है, आप बनना चाहते हो कुछ की नहीं, आप ये इक्वेशन समझते हो कि नहीं, प्लान ए समझते हो कि नहीं, प्लान बी समझते हो कि नहीं, ये समझते हो कि नहीं, दुख है कि सुख है, कि वो दोनों ऑल्टरनेटिंग है। ऐसा कुछ नहीं है शॉर्टकट लाइफ में कि मैं कोई इजी रास्ते से निकल जाऊं और सक्सेसफुल भी हो जाऊं, वो नहीं होगा। अच्छा। तो तो एक बात बताइए, ये जो आप जो कह रहे हैं एकदम सही बात है, और मैं समझता हूँ कि काफी सारे बच्चे जो हैं उनको भी उनके माता पिता, टीचर, सब लोगों ने ये बताया होगा, मगर जब गुलाब जामुन हमें नहीं खाना चाहिए एक समय, या चुनना चाहिए कब खाना चाहिए, वो तो बात है, मगर जब गुलाब जामुन सामने हो तो उसको कैसे रेजिस्ट किया जाए उस समय में जब मन करता है कि खा लें, या इंस्टाग्राम हो तो हाँ, कैसे वेरी गुड क्वेश्चन। कि कितना इंस्टाग्राम ठीक है, कितना इंस्टाग्राम अब मुझे मेरे रास्ते से थोड़ा दूर कर रहा है या भटका रहा है। करेक्ट। और आपने बड़ा अच्छा ये गुलाब जामुन की एनालॉजी दी कि अगर पड़े हुए हैं, डिस्ट्रैक्शंस आपके रास्ते में है, और एंड इसका आंसर आपको, जैसे अगर आप कोई बहुत फिट आदमी से मिलो ना, उनसे मैं पूछ चुका हूँ सवाल जी, कि आप बुफे में जाते हो, और इंडियन मेंटालिटी होती है बुफे है तो मतलब पाड़ो, पूरी वैल्यू निकालो यार, भर भर के खाओ। आप वो तो फ्री है ना, आप फ्री है, आइसक्रीम गुलाब जामुन फ्री है, आप कैसे नहीं खा रहे, टेस्टी भी है, फ्री भी है, आप पैसे भी दे रहे हो, आपके मतलब दे से देयर इज समथिंग बिगर, हम्म, दे कॉल दिस सेल्फ एफर्मेशन। जी, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। जी, सेल्फ एफर्मेशन का हिंदी में मतलब है अपने आप को खुद को तसल्ली देना, एक तरह से। हम्म, दो सेल्फ एफर्मेशंस। जी, वन, आई कैन डू हार्ड थिंग्स, मैं मुश्किल चीजें कर सकता हूँ। मोस्ट लोग ये बात अपने आप पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने कितनी बार लाइफ में ट्राई किया और हम फेल हुए हैं, कोई भी चीज करने में, बड़ी चीज, हमें लगता है हम गधे हैं, हमसे नहीं होगा। जी, तो अपने आप को कहना पड़ता है, नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं मुश्किल काम कर सकता हूँ, मतलब मैं बैठ के 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, मैं फोन बंद करके अपनी किताब खोल सकता हूँ। कई हम्म, लोग ये लिखते हैं सेल्फ अफर्मेशन, कई लोग हम्म, दीवार पे लगाते हैं, कई लोग बोलते हैं, बोल लो सुबह उठ के एक बार, आई कैन डू हार्ड थिंग्स। जिम जी, जाने से पहले भी कई लोग बोलते हैं आई कैन डू इट, जी, आई विल डू इट, आई कैन डू हार्ड थिंग्स। सेकंड, आई डिजर्व द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। बहुत से लोग अपने औकात, अपने आप को अंदर से सोचते हैं मैं इस लायक ही नहीं हूं। हम्म,
कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं देखने में मेरी बॉडी अच्छी हो, तो खा ही लेता हूँ गुलाब जामुन। मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं डिजर्व करता हूँ अच्छी बॉडी, या मेरे में तो ताकत ही नहीं है, मैं तो हार्ड थिंग्स कर ही नहीं सकता, मैं तो मुश्किल काम कर ही नहीं सकता, तो मेरे में तो सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। पर अगर ये दो चीजें आ जाए आप में, आई डिजर्व द बेस्ट एंड आई विल वर्क हार्ड फॉर इट, तो गुलाब जामुन आपको गुलाब जामुन नहीं दिखेगा, वो आपको जी, अड़चन दिखेगा। अच्छा, बोलेगा इसे हटाओ, इसे लेके जाओ, ठीक है। हम्म, एंड ये नहीं है कि आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा सिर्फ, तो आपका जब मिशन क्लियर हो जाता है, आपका अपने आप में भरोसा आ जाता है, आप अपने आप वो फिजिक्स की किताब उठाओगे। इट्स नॉट इजी, जी, इजी होता तो यार सभी कर लेते हैं, जी, बट इट डजंट रिक्वायर जीनियस, इट हम्म, डजंट रिक्वायर सम अमेजिंग आईक्यू, इट डजंट रिक्वायर सम क्रेजी इंटेलिजेंस। कोई भी ये कर सकता है अगर कोई सही गाइडेंस दे कि यार ये है लाइफ का मतलब, जी, अपनी लाइफ आपको अगर यहाँ पे जो भी बच्चे हैं एंड हम्म, पेरेंट्स हैं, विच इज अमेजिंग, आपने पेरेंट्स को भी बुलाया है, हम्म, और मी एज अ पेरेंट ऑल्सो। जी, उस वाइफ कह रही थी कि वो सुबह नहीं उठता मेरा एक बेटा, ये वो। जी, मैंने जी, कहा देखो, अगर तुम्हारा बच्चा अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहता है जी, तो वो जरूर कर लेगा, हम्म, ये ताकत सब में है। हम्म, अपनी लाइफ को बनाने के लिए तो बहुत मेहनत लगेगी, बर्बाद करना बहुत आसान है। जो भी ये सुन रहा है, इफ यू वांट टू रूइन योर लाइफ यू कैन, हम्म, बट प्लीज डोंट, हम्म, यू हैव अ चांस। आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, कोचेस आपके साथ, सब आपके साथ हैं। अपनी लाइफ को कुछ बनाओ यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा आपको, बाद में खुशी नहीं मिलेगी आपको अपने आप से। थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल दिखाना है, थोड़ा सा मन पक्का करना है बस। मैं ये नहीं कह रहा कभी मजे मत करो, मैं जितनी अय्याशियां करी हैं लाइफ में उतनी शायद किसी ने नहीं की होंगी, लेकिन जितना काम मैंने किया है वो बहुत कम लोगों ने किया है। हम्म, ये एक लाइफ का एक रिदम है, बिकॉज आई टेल माई सेल्फ आई डिजर्व द बेस्ट हम्म, and I will work hard for it. I will take pain for it. I will do hard things. जी, जी, Once you do that, it's not just in studies, it will help you everywhere in life. You open a business, you want to have a fit body, you want to have relationships, आपको कुछ भी करना है, हम्म, आप सह लोगे। ये हम्म, साइकोलॉजी की आती है बात, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की नहीं है, ये ब्रेन साइकोलॉजी की बात है। जिस बच्चे में ये आ जाएगा वो निकल जाएगा। जी, 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 तो अब ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग, अगर मैं इसको बोल सकूं कि हम ये देख पाए कि हमें कौन सी दिक्कत चुननी है, कौन से समय पे क्या चीज हमारे लिए भले उस समय ज्यादा अच्छी ना लगे मगर आगे जाके अच्छी रहेगी। तो एक एफर्मेशन का आपने बहुत अच्छा तरीका बताया जिससे हम ये सोच सकते हैं। और मगर ये लॉन्ग टर्म चीज को सस्टेन करने के लिए क्या जरूरी रहेगा? बिकॉज मैंने काफ़ी बार ये भी देखा और हमारे व्यूअर्स के के मैसेजेस में भी आ रहा है कि लोग उस दिन या भले उस हफ्ते या उस महीने उस मोड में रह पाते हैं, मगर आगे जाते हुए ये कि उसको 1 साल तक, 2 साल तक एक जीने का नज़रिया बनाने का तरीका, वो कैसे आपके हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किया जा क्योंकि सकता आज चेतन भगत आपको मोटिवेट कर रहा है, आप मोटिवेट हो गए, हाँ यार अब मैं करके दिखाऊंगा, आज मैं एफर्मेशन करूंगा, और 2 दिन बाद ऐसे ठीक है यार, है? जी, तुम्हें नहीं उठना है, जी। अलार्म बजा बंद कर दिया, स्नूज। स्नूज एक तो बीमारी बनी हुई है सबसे बड़ी, हुँ, है क्यों स्नूज बटन? हुँ, मेरे बच्चे, मैं स्नूज बटन है क्यों, इसका क्या मतलब है? इससे बेटर है कि तुम 20 मिनट बाद का अलार्म लगा लो और अपनी नींद पूरी कर लो, तोड़ क्यों रहे हो नींद? ये जी, स्नूज क्या है? जी। सो इट इज नॉट इजी, एंड इवन मी, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, हुँ, लेकिन मेरे लिए भी इजी नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। सो आई वॉच, देर इज, आप यूट्यूब अगर देखना ही है तो उस पर मोटिवेशनल वीडियोस देखो, आपको हजारों मिल जाएंगे। जी, वॉच वन एवरी डे, डोंट वॉच सम स्टूपिड बॉलीवुड वीडियो और सम मीम्स एंड सम जोक्स। क्या कर रहे हो? जी, अगर देखना ही है तो कुछ मोटिवेशन देखो। आई वॉच एवरी डे, जी, sometimes I don't feel like going to the gym, for example, I am listening to the videos on my on जी, my earphones, because I feel like it's worth it, because I need it. I'm not a superhuman, I told you. I wake up lazy, I don't feel like doing it, and I'll tell you one thing, you will जी, never feel like doing it. जी, जी। You will never feel like doing things. अगर ये वेट करते रहे ना एक दिन मैं फील करूंगा, तो कभी हुँ, नहीं होगा। फील नहीं करने वाले भैया आप। हुँ, आपका फील आएगा मैं सोता रहूं रजाई में, मैं नेटफ्लिक्स लगाऊं और मम्मी गाजर का हलवा बनाए और मैं चिप्स खाऊं। तो ये करते रहो, फिर देखो कहाँ पहुंचोगे लाइफ में। सो यू हैव टू गेट अप।
मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग 5 सेकंड रूल पढ़ा था। 5 सेकंड रूल। जी जब जी सुबह उठना है, देखो सुबह उठना है, मन नहीं करता, एक चीज ट्राई करो, जब नींद खुलती है ना, जी जैसे रॉकेट का काउंटडाउन होता है 10 9 5 4, अपने मन में बोलो 5 4 3 2 1 अप, गेट अप। जी जी 20 मिनट्स वहीं बच गए, जी अंगड़ाइयां ले रहे हो, उठ रहे हो, हाँ जी मम्मी उठ रहा हूँ, यो आपको पता है 20 मिनट ओवर 1 ईयर कितने घंटे हो जाता है? 100 घंटे से ऊपर हो जाता है, जी राइट? अगर हम्म, आप रोज 5 घंटे करते हो, 1 महीने की पढ़ाई है वो अंगड़ाई आपकी। सो जी गेट अप, यू नो, ज्यादा सोचो मत। एवरी डे यू डिसाइड, आज मेरे को 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, मेरा जी मन नहीं कर रहा पर जी मुझे करना है। मन नहीं करेगा, मन मेरा नहीं करता रनिंग करने का, मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट द फिटेस्ट गाय, जी बट मेरा नहीं मन करता। अरे और 100 बहाने, अरे आई एम 46 ईयर्स ओल्ड, मुझे क्या जरूरत पड़ी है भागने की, 8 किलोमीटर मैं रोज भागता हूँ, वाह, जी मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली। मैं जी तो पंजाबी हूँ, पंजाबियों को तो खाना ही होता है, पंजाबी तो मोटे ही अच्छे लगते हैं, हम्म, कोई भी स्टूपिड रीजनिंग, जी पर ये बकवास है मन की। उठो बेटा और दौड़ो, उठो बेटा और किताब खोलो। तो ये I know I may not be sounding like a very, sweet uncle who's like, but I want you to do well. And I was like you, हम्म अंडर कॉन्फिडेंट, लगता था नहीं होगा। एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रोज नहीं मोटिवेट हो गए, वॉच अ मोटिवेशनल वीडियो, डू योर जी सेल्फ अफर्मेशन, गेट अप इन द मॉर्निंग 5 4 3 2 1, और अपना बेड बनाओ, उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर बनाओ। ये नहीं मम्मी बनाएंगी काम वाली में, कुछ नहीं, अपना पलंग खुद बनाओ, अपना बेड बनाओ, और फिर देखो आपने एक चीज तो सुबह कर ली ना। आज मैंने क्या किया, सुबह बेड बना लिया, इसके बाद काम काम वाले मोड में आ गए आप। तो चेतन, ये जो आप तो हमने, अगर मैं अभी तक हमने जो चर्चा करी है उसको अगर कुछ भागों में तोड़ूं, तो उससे हमें ये दिखता है कि एक तो जरूरी है अपने आप को सही रास्ते पे रखना, उसके लिए अपने आप को सही चीज बताते रहना बहुत जरूरी रहता है। हम्म दूसरा ये भी है कि दिक्कतें आएंगी, मगर हमें चुनना चाहिए हमें कौन सी दिक्कतें मिलती हैं और हम दिक्कतों के साथ जूझना चाहते हैं। हाँ तीसरा ये है कि इसको हमें एक दिन या एक महीने के लिए नहीं करना है, इसको एक अपना देखने का नजरिया बनाना है जिंदगी को। तो अब इसके इसके हिसाब से अगर हम वापस वो 90 दिनों के विषय पे आए, और जो हम हमारे व्यूअर्स भी काफी पूछ रहे हैं, काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि अब वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर तो कर रहे हैं और उन्होंने 1 साल से या 1.5 साल से जो भी हो, उन्होंने हर रोज कोशिश करी है, हर रोज मेहनत करी है, मगर आखिरी 90 दिनों में ऐसे क्या हैं वो सुपर। कुछ चीजें जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने भी शायद अपने परीक्षा के समय पे इस्तेमाल करी हो, वो कुछ तरीके अगर आप उनको बता सकें। हाँ तो सही है, गुड गुड। तो लेट्स अज्यूम ये सब आपने किया, अपने आप को मन पक्का किया, सुबह उठे, तैयारी कर रहे हो, और अब 3 महीने बाकी है। सो जी नाउ यू आर वंडरिंग कि यार अब कुछ अलग करूं या वही करता रहूं या कैसे करूं। ठीक है, तो एक तरह से सोच लो जैसे गाड़ी का गियर बदलना है, थोड़ी देर के लिए आप लाइफ में बहुत ज्यादा कष्ट कर सकते हो। जो कदम आप 90 दिन के लिए कर सकते हो वो 2 साल के लिए नहीं कर सकते। सेम अगर डाइट का एग्जांपल लें, तो आप 2-3 दिन एक मील, अगर आपको दिन में सिर्फ एक टाइम खाना है, आप 4-5 दिन कर सकते हो, लेकिन पूरा साल नहीं कर सकते। जी तो इसी तरीके से 90 डेज में आप थोड़ा स्ट्रिक्टर शेड्यूल पे ला सकते हो। आप इजीली, आप पहली बात तो उस 90 डेज को भी 90 60 और 30 में बांट लो। जी ठीक है, जी एंड देन आप उसको बेसिकली द 90 डेज जब बचे हैं, जितना आपका एवरेज चल रहा था 20% बढ़ा दो अपना हम्म, पढ़ाई का टाइम, राइट, 20% मोर, एंड जी देन कट आउट अ फ्यू थिंग्स। बी वेरी क्लियर कि यार अच्छा मैं तो अच्छे से तैयारी कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को 2 चीजें चेंज करनी हो, ये चीज में क्या डिस्ट्रैक्शन काट सकता हूँ, अभी क्या काट सकता हूँ, वो जी करना है। ठीक है, जी एक तो वो, दैट इज व्हाट आई। ओके सेकंड थिंग आई रिकमेंड इज nothing to do with studies but physical fitness. I'm not saying become bodybuilder, I'm not saying that, but thoda sa do some cardio, 20-30 minutes a day, do something which is not connected to studies, जी but it is not कि ब्रेक लेने के लिए मैं एक एपिसोड देख लेता हूँ जी नेटफ्लिक्स। जी इट्स वेरी पैसिव रिलैक्सेशन। जी जी आप बस कह रहे हो मैं ब्रेन को स्विच ऑफ करूंगा, तो कैसी रिलैक्सेशन आपके हिसाब से हमें करनी just चाहिए? something which is not about physics, maths, chemistry, if that's what you're studying, or biology, whatever, but it is about lifting weights,
it's about running, you know, it's also diverting your mind. आपको लग रहा है काम है, but first few days 3-4 दिन आपको काम लगेगा, लेकिन उसके बाद it will have huge benefits. Maybe you will not become bodybuilder, because I'm not telling you to do bodybuilder level, but your circulation will improve, your sleep will improve, your mind will be refreshed, you'll sweat, you know, you'll feel good, you'll just feel good. But that break is a constructive break. So don't ignore that, because बहुत से लोग 90 डेज अब मेरे को कोई नहीं छेड़ेगा, मैं हिलने भी नहीं वाला यहाँ से, और मोटे तो हो ही रहे हो, बट द मेंटल गेम कह रहा हूँ, आपकी कंसंट्रेशन खराब हो रही है, आपका फोकस खराब हो रहा है. When you sweat, when you increase your heart rate, your focus goes up. A lot of other benefits happen. You can read a lot of mental benefits of exercise. So bring that exercise if you have not brought it in. Then 60 days are left, right? Get a little more strict. Make that 20% more, 40% more, right? Right? Maybe just, if you are very serious, put your phone in airplane mode for many, many hours a day. Not half an hour, but like 6-8 hours. Okay. Continue the physical fitness. Don't stop. And 30 days, keep the 60 days wala. Don't increase more work, but don't take stress, and get into the habit of sleeping on time and waking up on time. तो आप, मैं अगर एक तरीके से ये कहूँ कि आप कह रहे हैं कि रूटीन की एक बहुत ज़रूरत होती है, मगर चेतन सर, उसमें एक प्रॉब्लम जो हमारे व्यूअर्स काफ़ी कह भी रहे हैं, और मैंने खुद भी देखी है जब मैं स्टूडेंट था, कि रूटीन बनाना, जैसे अभी एक व्यूअर थे, उनका बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मैं टाइम टेबल तो बना लेता हूँ, मगर वो टाइम टेबल पे रुकना और उसके साथ काम करना वो मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए आप कैसे, अगर आपके दिमाग में भी ये सोच आती होगी, तो आप अपने आप को उस टाइम कैसे, क्या कहते थे, कैसे संभालते थे इसमें? टाइम टेबल इज अ फैसिनेटिंग क्वेश्चन एंड फैंटास्टिक टूल. टाइम टेबल सब बनाते हैं, सबको बनाना होगा. You can't do this. But people think of timetable as punishment. ये मेरी सजा है. जैसे कोर्ट में कह दिया गया कि तुम 6 महीने जेल रहोगे. टाइम टेबल हम ऐसे बनाते हैं, ये तुम्हारा टाइम टेबल है बेटे, तुम कुछ नहीं करोगे, सुबह उठोगे 9 बजे ये करोगे, और इतना स्ट्रिक्ट बना देते हैं कि वो, जैसे कि वो खुद कह रहा है कि मैं सस्टेन नहीं कर पाता, मैं फॉलो नहीं कर पाता. तो क्या सोल्यूशन है? आप टाइम टेबल को एक नेगोशिएशन मानो, अपने आप से नेगोशिएशन. पनिशमेंट नहीं है टाइम टेबल. टाइम टेबल इज अ नेगोशिएशन. मतलब, ओके चेतन, कल तेरे को बैठ के ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स का, इस हफ्ते, ठीक है, 11 बजे से 4 बजे तक तू पढ़ेगा. नहीं 5 घंटे में नॉन स्टॉप नहीं कर सकता. चेतन को बोल रहा है. चल ठीक है, लंच का ब्रेक ले ले 1 से 2, पर मैं सिर्फ लंच खा के फिर से नहीं बैठ सकता, आधा घंटा मेरे को चिल करना है. चल ठीक है, लेकिन एक वॉक करके आनी पड़ेगी, ये नहीं कि टीवी देखा. चलो ठीक है, तो फिर 11 से 1 चेतन पढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, 1 से 1:45 लंच खाएगा, चलो 1:45 से 2:15 वॉक करेगा, 15 मिनट चलो टीवी भी देख लेगा, 2:30 फिर बैठेगा और 5 बजे तक वो करेगा. ये मेरा टाइम टेबल. ये वाला टाइम टेबल क्योंकि मैंने नेगोशिएट करके बनाया है अपने आप से, इसमें थोड़े मजे भी डाले हैं, थोड़ा आराम भी डाला है, ये फॉलो हो जाएगा. डोंट ट्राई टू मेक द बेस्ट टाइम टेबल. बेस्ट नहीं सर, बेस्ट टाइम टेबल नहीं करना है. तो take a timetable which is negotiated with you, which has fun, which has relaxation, which is sustainable. If you have made it and you can't follow it, you made it too strict. अगर मैं आपको बोलता हूँ कल 10 पुशअप्स करने हैं, आप कर लोगे, ठीक है. अगर बहुत आराम से कर रहे हो, that means too easy. अच्छा, sometimes you can over negotiate easy also. अगर कहता आधा पेज पढ़ ले फिजिक्स का, that's too easy. No. If I tell you read 100 pages a day, too difficult. What is the right answer? What can be sustained? तो वो खींचातानी चलती रहेगी दोस्त. आपने टाइम टेबल बनाया, जरूर नहीं है कि आपने बनाया गलत बनाया, आपको उसको लूज करो. टाइट कर रहे हो बहुत ज्यादा, स्क्रू टाइट करोगे तो दम घुटेगा. दम घुटने का गेम नहीं है यार. 2 साल की मेहनत है. 2 साल की मेहनत ऐसे नहीं हो सकती दम घोट के. आपको एक रिदम, ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक फुल अय्याशी होगी, लेकिन एक जीवन तो बिताना है. आपको एंजॉय तो करना है अपने आप को. 2 साल अगर आप बिल्कुल एंजॉयमेंट ही नहीं है लाइफ में, तो ये तो सजा ही हो गई. सजा तो ना दे रहे हैं हम आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि कैसे लाइफ में
इंजॉय भी करना है और अचीव भी करना है, दोनों तो हो इस सकता है। तो ये आती है कि आप जो बता रहे हैं सर कि स्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। वो 90 दिन जो आपके आखिरी हैं उसको भी आप 90, 60 और 30 में ब्रेक कर सकते हैं। उसके अंदर आप एक टाइम टेबल रख सकते हैं, और जो हमारे सारे व्यूअर्स हैं जिनकी टाइम टेबल पे क्वेश्चंस थे बहुत सारे हैं, हम सारे तो नहीं ले पाएंगे, मगर चेतन सर ने उसका एक तरीके से उत्तर दे ही दिया है। तो वो टाइम टेबल को थोड़ा सोच के बनाना, और एक जेल की सजा जैसे आपने कहा वैसे ना बनाना बहुत जरूरी रहता है। और उसमें देखना पड़ता है हमें कि इसमें हम थोड़ा अपने मनोरंजन का समय भी रखें, अपनी पढ़ाई का समय भी रखें, और वो चीजें करें जो हमें कंस्ट्रक्टिवली हमारे फायदे में आती हैं, हमारे अंदर हमें कुछ नया सिखाती हैं, या फिर भले बॉडी बिल्डिंग हुआ या जिमिंग हुआ या फिटनेस कुछ भी हो सकता है। तो ये तो 90 दिन के लिए आपने काफी एक अच्छा स्ट्रक्चर तो दे दिया है, मगर काफी सारे बच्चे हैं जो अभी पूछ रहे हैं ये कि पेयर प्रेशर का एक एंगल बहुत होता है इस दौरान, भले ही 90 दिन हो या 2 महीने हो, मगर वो भी एक मान लीजिए एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन में जा सकता है, या फिर सिर्फ एक पेयर प्रेशर हो सकता है कि बाकी बच्चे और पढ़ रहे हैं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, या फिर बाकी नहीं पढ़ रहे तो मैं क्यों पढ़ूं। तो उसके बारे में आपकी क्या क्या विचार हैं, आपके क्या सोच है आपकी? I don't know. Just I think it depends on each student, you know. I mean, इतना मत सोचो. Listen, I mean, this is not a comparison के चक्करों में मत पड़ो. Just compare. I think the one thing I have done right in my life is I don't compare myself to others. जी Just compare yourself to where you were 1 week before, 1 month before. Better than yesterday, better than last month, better than last year. You know, यार. जी जी You know कि तुम क्या कर रहे हो. You know जी कि तुम और मेहनत कर सकते थे कि नहीं. You know कि तुम शॉर्टकट ले रहे हो कि नहीं ले रहे. You know कि तुम्हें पता है. अपने आप से एक सच बोलो. अपने आप से तो सच बोलो यार. You know. और ये बस उसने ये किया, और ये जो है ना कि पैनिक करना और उसका ये वो ये don't do that. जी जी Never do that. आपको एक सीट चाहिए, सिर्फ एक अपने लिए. जी और आपको पता है वो मंजिल कहाँ तक है. आपको पता है आपको कैसे जाना है. आप यार लोग, आई नो लोग करते रहते हैं कंपैरिजन, बट इट डजंट मैटर. तो चेतन सर, आप ये जो दो आखिरी सवाल हैं मेरे ख्याल से जो हमारे पास काफी ज्यादा आ रहे हैं, समय तो लिमिटेड है, मगर एक एक प्रश्न ये आ रहा है कि जो आजकल एकेडमिक्स का एनवायरनमेंट हो चुका है उसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन एक तरीके से है। जैसे अब आप देखेंगे कट ऑफ्स किसी कॉलेजेस के देखेंगे तो 99% पे जा रहे हैं। सीटें ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं, मगर बच्चे जो उन सीटों के लिए परीक्षा दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है कंपेटिटिव एग्जाम के आसपास, उसके दौरान, वो कैसे, उसके हिसाब उसको कैसे हम अपने लिए मैनेज कर सके, बिकॉज वो भी एक तरीके की डिस्ट्रैक्शन फिर आगे जाके बन सकता है और हमें कैसे मतलब नकारात्मकता में छोड़ सकता है। डिस्ट्रैक्शन मतलब कैसे? कि वो बात ऐसी हो जाती है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, सीटें कम पड़ रही है, 99%, अगर कितने बच्चे हैं जो देखते हैं 99% होगा, मगर वो कहेंगे 99% कहाँ ही हो पाएगा। मैं मानता हूँ सबका तो नहीं हो सकता, जी बट ये जो जर्नी है, ये मेहनत की जो जर्नी है, कभी वेस्ट नहीं जाती. जी एक मेहनत की आदत डाल लो तो जरूरी नहीं है कि एक कॉलेज का ठप्पा लगेगा तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे. जी अगर मैंने आपको शुरू से ही फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स आई ओनली टॉक्ड अबाउट द मेंटल एटीट्यूड. जी दैट हैज नथिंग टू डू विद व्हिच कॉलेज यू फाइनली गो टू. अगर वो आपका एटीट्यूड है कि agree, बॉस मेरे को लाइफ में मेहनत करनी है, जी बॉस मेरे को कुछ करना है, तो हम्म वो दैट विल टेक यू फार यार. हो हम्म सकता है आज आपका ना भी हो. चलो, वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट अंडरस्टैंड इवेंचुअलिटी. जी लेकिन आपने सीख लिया ना मेहनत करना, तो कभी ना कभी तो मेहनत रंग लाती है यार. वो तो जी इतना मत सोचो कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी सब कुछ है क्या, सारे इंडिया के सारे अचीवर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, ऐसा तो नहीं है ना. नहीं, ये बहुत बहुत मतलब मुझे खुद भी काफ़ी खुशी हुई कि आपने ये बोला, क्योंकि मैं भी ये काफ़ी बार सोचता था जब मैं स्कूल में था और कॉलेज में था कि वो मेहनत की आदत और मेहनत से निकली हुई एक एक स्कोर या एक रिजल्ट, वो उस समय की एक बात है, मगर वो मेहनत की आदत आपके साथ हमेशा चलती रहेगी और आपके साथ आगे रहेगी, और कभी ना कभी आपको उसका रिजल्ट या फायदा जैसे भी आप देखना चाहें मिलेगा।
अरे तो इंडिया के सबसे बड़े आप अचीवर्स या सबसे बड़ी सेलिब्रिटीज देख लो, कितने लोग गए हैं ऐसे कॉलेजेस में। एक मैं ही हूँ जो पढ़ा लिखा सेलिब्रिटी घूम रहा हूँ यहाँ पे। जी जी ज्यादा नहीं लोग अपना मतलब आई एम नॉट आई रियली लव माय इंस्टीट्यूट्स एंड आई इट इज ग्रेट इफ यू कैन गेट इन, जी जी बट अल्टीमेटली एक इंसान की जो वैल्यूज हैं, जो इंसान के संस्कार हैं, जो इंसान का एटीट्यूड है, जो इंसान की आदतें हैं और जो जी इंसान की चॉइसेस हैं, जो वो जी चुनता है कि मैं मेहनत करूंगा या सोऊंगा, जी उस पे जी इंसान बनता है। मैं जी सीखूंगा या मैं दुनिया के गालियां देता रहूंगा, जी उससे इंसान बनता है। डिग्रियों से आदमी को धक्का लग जाता है आगे, थोड़ा एक पुश मिल जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि वो ही सक्सेसफुल है। ये मत सोचो यार, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। जी। तो चेतन सर, 2 चीज़ें आपके पास मैं रखना चाहूँगा आपके और सुनना चाहूँगा कि आपके क्या विचार हैं उसके ऊपर। एक क्वेश्चन जो आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, वो ये है कि काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि अब ये सब्जेक्ट कोई है जो उनको पढ़ना पड़ रहा है मगर उनको इंटरेस्टिंग नहीं लग पाता। तो उस पे कैसे वो अपना इंटरेस्ट बनाए रखें, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि हमारी एक तरीके से जो भी हमने अभी तक चर्चा करी है, सारी चीज़ों को मिला के अगर एक मेंटल हेल्थ का एलिमेंट हो इन आखिरी 90 दिनों के लिए, क्योंकि अगर 2 साल का समय होता है तो लगता है आदमी को कि मैं कर लूँगा, तैयारी हो जाएगी, समय है। मगर आखिरी 90 दिन आपके एग्ज़ाम से पहले प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट जिससे हम ख़त्म कर सकें, और उससे पहले एक ये ज़रूरी बात कि जो वैसे क्वेश्चंस हों या पेपर्स हों या सब्जेक्ट्स हो जो हमें पसंद ही नहीं आते, इंटरेस्ट आता ही नहीं है, तो उसमें क्या किया जाए? नहीं देखो, अब कुछ लोग तो बिल्कुल ही लाइक अगर मतलब ऑपोजिट एंड्स पे होते हैं, जिनको कोई बिल्कुल ही वो सब्जेक्ट नॉट नॉट ओनली इंटरेस्ट नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ, वो बिल्कुल भी उसके लिए नहीं बने हैं। जी, दे शुड नॉट, दे देन दैट्स एवरी, लाइक आई सेड एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, तो जी, उनको तो वो सब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन ये भी मत सोचो कि तुम्हें हर वक्त काम में मजा आएगा, जी, हर वक्त नहीं आता है। बहुत सही बात। ये एक थोड़ा नया जनरेशन में हो गया, डू व्हाट यू लव। जी, सर रगड़ना किसी को हर वक्त नहीं प्यार होता, और जी, रगड़ना पड़ता है लाइफ में कुछ बनने के लिए। जी, जी, अब आई डोंट नो, कॉल इट ओल्ड फैशन, बट इट इज ट्रू। आप देख लो, इसरो के चेयरमैन है, राइट? आई मीन इसरो इज लाइक व्हाट एक्साइटिंग जॉब। आई मीन जी, स्पेसशिप लॉन्च कर रहे हो, 10 9 8 7 हो रहा है, रॉकेट उड़ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड सेटिस्फाइंग जॉब। जी, पर वो रोज होता है, रोज तो नहीं रॉकेट जाता। जी, साल में एक बार, 2 साल में एक बार रॉकेट जा रहा है ऊपर, जी, तब वो जी, टीवी पे आ रहा है, तब इसरो चेयरमैन खड़े हैं। बाकी जी, टाइम इसरो चेयरमैन क्या करते होंगे? फाइलें, सरकारी है, इट इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी फाइलें, बजट पास कराना, प्लान बनाना, मीटिंग करना, जी, एचआर बनना, लोगों की कैजुअल लीव साइन करना। आपको लगता है इसरो के चीफ को बड़ा मजा आता होगा वो सब करने में? जी, अब वो ये तो नहीं कह सकता मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा यार, मैं नहीं करता, 10 9 8 7 पे बुलाना मुझे। ऐसा नहीं होता सर। ठीक है। कोई भी काम 100% नहीं इंटरेस्टिंग होता। आप भी ये प्लेटफॉर्म चला रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि रोज एक्साइटमेंट है। जी, जी। तो अगर पानी लीक कर रहा है आपके ऑफिस में, तो आपको पानी लीकेज ठीक करानी है। अब इसमें कोई, तो आप ये तो नहीं कह सकते आई मेरे को तो वही करना है एग्ज़ैक्टली, व्हाट आई लव, आई डोंट लव प्लम्बिंग। एग्ज़ैक्टली। तो तो आप यही एक तरीके से यही है कि जो हमें जिसमें हमारी एक्चुअल रुचि है, वो हमेशा उसको ढूँढना चाहिए, अपने पैशन को ढूँढना चाहिए, मगर उसके साथ-साथ हमेशा ज़िंदगी में कुछ चीज़ें रहेंगी जो उसके आस-पास चलती रहेंगी, और वो ही पूरी डील के अंदर एक हिस्सा है उसका वो, कि क्या वो है, कर। मेरे को किसी ने कहा था अगर आपको अपना काम 50% इंटरेस्टिंग लगता है और 50% नहीं लगता, जी, 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 देन यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस। जी, जी। 50% से ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता काम, कोई भी, दुनिया का बेस्ट काम। ये तो इसको एक एक हम एक हैक मान लीजिए, उसकी तरह ज़रूर अपने बच्चों के पास पहुँचाएँगे अपने टीचर्स के थ्रू, कि 50% 50% पसंद नापसंद, ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपने बताई। चेतन सर, अब बस ख़त्म करते हुए एक मेंटल हेल्थ वाली बात जो आपसे करी थी वो ज़रूर बताएँ, और जो दूसरी चीज़ है जो बच्चों से बहुत रुचि आ रही है वो ये है कि आपके कुछ लाइट हार्टेड मोमेंट्स या कोई वो समय जो आपका हुआ था, भले आईआईटी, आईआईएम में हो या स्कूल में भी हो सकता है, अगर आप वो कुछ शेयर कर सके तो वो भी काफ़ी पसंद आए देखो, बच्चों को। मेंटल हेल्थ का ऑब्वियसली एन एक्सपर्ट में आंसर बेटर, बट आई मस्ट से कि अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी जी, का लाइफ में कभी फायदा नहीं होता है, और जिंदगी परीक्षा लेती रहेगी। ये तो एक्चुअल परीक्षा है, ये जी, तो एक्चुअली में एग्जाम हो रहा है, पेपर देना है। जी, बट जिंदगी, आप अपने पेरेंट्स से पूछ लो, अपने दादा दादी नाना नानी से पूछ लो, जिंदगी अलग अलग मौकों पे
आपकी परीक्षा लेती रहेगी। हम्म, ये नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गया फिर कोई लाइफ में टफ घड़ी नहीं आएगी या कोई, पर अब आपके ऊपर है आप कितना उसको कैसे हैंडल करते हो। जी ह्यूमन बींग्स की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जी ह्यूमन बींग्स ने वॉर्स सरवाइव किए हैं, ह्यूमन बींग ने अर्थक्वेक सरवाइव किए हैं, फैमिन सरवाइव किए हैं, जी एवरेस्ट चढ़ा है, जी बर्फों में रहे हैं, रेगिस्तान में रहते हैं। जी बहुत कुछ सह सकता है इंसान। मैं ये नहीं चाहता कि ये सब हमें करना चाहिए, जी। लेकिन जितने कंफर्टेबल हम आज हैं ना ह्यूमन रेस, आज तक कभी नहीं हुआ है। आज तक कभी नहीं हुए हैं। जी एसी भी चलते हैं, फैन भी चलते हैं और जनरली लाइफ ठीक है। जी पर जो आप 100-200 साल पहले भी देखो ना, कुछ बड़ा भयंकर, अभी एक कोरोना आ गया वो हमें थोड़ा डील करना पड़ रहा है, हाँ घर बैठ के टीवी देखना है, ठीक है, ओके। हम्म। पर इन जनरल हमारी कैपेबिलिटी बहुत है। घबराओ मत। जी कोई भी चीज को एक गेम की तरह मानो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, जी नहीं हुआ तो कुछ और रास्ता निकाल लेंगे लाइफ में। आप हम्म, कितने, मतलब ऐसा, मेरी क्लास के जो एपीएस में, मैं मेरे 12th ग्रेड में आई थिंक 200-300 में से 5 जनों का भी नहीं हुआ था आईआईटी में, 3 का हुआ था शायद। जी तो जरूर नहीं कि हम 3 ही बेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, जी बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा करा है। कोई डिजाइनर बना है, कोई फोटोग्राफर बना है, भरत सिक्का, राना गिल इज माय क्लासमेट, शी इज अ डिजाइनर, भरत सिक्का इज अ फोटोग्राफर, and there are many people who are not famous but they are doing very well in life। कोई यूएस में है, कोई यूके में है, कोई सीएफओ है, सो दे आर ऑल, लाइफ वर्कआउट कर जाती है यार। जी। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, ठीक टेंशन है। सिर्फ देने का, वो मुन्ना भाई का डायलॉग है। तो अब आप कुछ वो मोमेंट्स बताइए जब आप टेंशन दे रहे थे बाकी लोगों को अपने स्कूल कॉलेज टाइम यार में मैं कुछ। जो स्कूल में करता था ना वो किसी को नहीं करना चाहिए। और मतलब मैंने, एक मेरे को लड़की बड़ी पसंद थी, उसकी क्लास में हम झांक झांक के मैं देखता रहता था, जस्ट मतलब नहीं, तभी शायद मैं रोमांटिक नॉवेल्स लिखता हूँ। एंड उसको एक बार मेरे को पता नहीं कहाँ से सूझा कि उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने उसकी जी क्लास में दिवाली बम फोड़ दिया। आई डोंट नो, आई थॉट कि ये बड़ा कूल लगेगा उसे, बट ये बहुत ही स्टूपिड आइडिया था। और जी हम वो दिवाली बम ऐसे करते थे कि वो उसका ना एक, आई डोंट नो, आजकल तो सब वर्चुअल हो गए, इमोजीज पे बॉम्ब आते हैं, पर उस जी टाइम असली के होते थे, जो एक उसका फ्यूज निकाल के आप जी उसको लगा के छोड़ दो तो वो बहुत देर, 15 मिनट बाद फटता था। जी तो वो टीचर क्लास ले रही थी और मैं टीचर के पीछे वाली कबर्ड में जाके मैं बॉम्ब लगा के निकल गया, और वो उसका दूसरा सेक्शन था जो जिस लड़की जो मुझे पसंद थी। अच्छा। एंड 15 मिनट बाद वो बम फटा और आवाज हमारे सेक्शन तक भी आई, और मेरे को लगा अब तो उससे मुझसे प्यार हो ही जाएगा, जबकि आई डोंट नो व्हाई मेरी ये थिंकिंग थी। हम्म, एंड उस टीचर ने कहा कि किसने किया ये। जी पर ये आर्मी पब्लिक स्कूल के कमाल की बात है, जी जी उनको पता था मैंने किया है, जी किसी ने जुबान नहीं खोली। जी सब टीचर ने सबको बेंच पे खड़ा किया, इंक्लूडिंग दैट गर्ल आई लाइक। दे जी। ऑल स्टूड फॉर 1 hour ऑन द बेंच, अच्छा अच्छा। on the but they did not open their mouth. Of course they all hated me। उसके बाद मेरी खूब उन्होंने पिटाई करी, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। And do not do this। You asked me this question, so I'm telling you I am not proud of it। Don't do this। I could have been expelled, I could have been in big trouble, I could have ruined my career and not even got the love of my life। चलिए ये तो एक स्कूल का बताया, बट अब थोड़ा कॉलेज और अपने मैनेजमेंट स्कूल का भी बताइए वहां पे। कॉलेज तो पिक्चर बन चुकी है सर, 3 जी इडियट्स आप देख चुके हो, और अच्छा। कॉलेज भी 2 स्टेट्स आप देख चुके हो। सो लॉट ऑफ दोस थिंग्स, सम ऑफ इट ऑफ कोर्स उसमें मसाला लगा के फिल्म में बनाया गया है, और कई चीजें जो हुई थी वो हम फिल्म में दिखा नहीं सकते थे, जी जी क्योंकि अच्छा। हम फंस जाएंगे। ठीक है। तो मैं मतलब अभी आई वुड से कि नाउ एज अ रिस्पॉन्सिबल फादर जी 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 आई शुड रादर नॉट गो देयर। जरूर जरूर, वो तो खैर। हाँ, जो मेरी अच्छी बातें करी है ना वो फॉलो करो तुम लोग, जो मैंने गलत बातें की है वो मत करो। हाँ मतलब बम प्लीज मत फोड़िएगा कभी भी अपनी क्लास में। वेरी बैड। ठीक है। तो आप वेरी वेरी थैंकफुल कि आप आए हमारे पास। अ, उससे भी ज्यादा कि आपने बच्चों के लिए इतना समय निकाला, बिकॉज आई थिंक जो थीम्स के बारे में हमने बात किया है, ये थीम्स काफी ज्यादा जरूरी हैं आजकल के जमाने में। बहुत सारी चीजें जो डिस्ट्रैक्शंस बनती हैं, जो लोगों को अलग रास्ते पे ले जा सकती हैं, कंफ्यूज कर सकती हैं, वो आपने क्लैरिफाई किया। बट मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि प्लीज आप टीचर्स को भी इनके थैंक कीजिए जिन्होंने इनको ये सेशन पे जो ला पाए हैं, और ऑनेस्टली पूरा
हफ्ता महीना वो आखिरी 90 दिन इनके साथ उनके सारथी बन के टीचर्स ही रहते हैं। No, I agree, and you know it's not easy to organize events like this, even though ऐसा लगता है बस virtual है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन इसमें भी बहुत प्लानिंग लगती है, इसमें भी बहुत लोगों ने किया। मुझे तो आके सिर्फ बात करनी थी, लेकिन lot of people have worked behind the scenes to make this happen, so I want to thank them. You know, I really feel it's good that you do this. I now that after doing this मुझे लगता है कि कितना अच्छा है कि हमने ये किया, because I wish when I was a student मुझे ये करने का मौका मिलता है। I want to thank all the coaching tutors, teachers for organizing this event. You know, they care for you. They want that each one of you clears the exam. That is what is going to make them most happy. And for the same, they wanted to conduct this beautiful session. And yeah, thank you. You were a great moderator as well. Thank you. Thank you. Thank you so You're much. much better student than I ever was. Okay, thank you. Thank you. Thanks. Bye. बच्चे प्लीज आप अपने सब ट्यूटर्स को और कोचिंग सेंटर्स जो हमारे देश की बैकबोन है उनको प्लीज जरूर थैंक यू कीजिएगा। जो भी आप यहाँ पे आ पाए हैं, सर के साथ सेशन था, सब आपके ट्यूटर्स की वजह से है, तो प्लीज उनको थैंक कीजिएगा और हमारी तरफ से भी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन विद अस।